my poem which I call Phoolon Ka Desh, and I mean Britain as the land of flowers. फूलों के इस देश में कौसर फूल ही बनकर रहिएगा, दुख भी मिले तो सहिएगा और सुख भी मिले तो सहिएगा। अपनों ने जब कदर न जानी इस नगरी में आए हम, दर दर ठोकर खाई लेकिन दर्द से ना घबराए हम। नफरत की दीवारों से भी सर के बल टकराए हम, कोई हमारा मिशन नहीं था, पेट की खातिर आए हम। अब पेट भरा तो किसी धनक पर ताल भी कोई दहिएगा, दुख भी मिले तो सहिएगा और सुख भी मिले तो सहिएगा। I am Dr. Muhammad Shafi Kausar. I'm born in 1938 in a village near Delhi, but migrated to Pakistan quite early and settled in Multan, where I'm fully educated up till becoming a doctor in 1965. During September, a war broke between India and Pakistan. At the time, I was working as a trainee in orthopedic surgery, where accident, broken bones, they were repaired. The President, Field Marshal Ayub, then appealed to doctors that Pakistan Army needed some doctors, and I volunteered. And I became an army officer on 11 September 1965 during war, and volunteered to go to the borders. One of the most important was that one of our soldiers, and my picture will show, when the bomb used to cross our head, they sometimes give you lights. Now when he used to see the light, he used to shout Allahu Akbar, Allahu Akbar. And we all used to hold him, try to make him quiet. And the reason was, by the sound, enemy can locate your position. Up till that time, the bombs were going over our head. We were not being targeted, they were falling on fields. But because of his sound, the bombs started coming nearer and nearer. And the colonel at the time asked me to declare him as mental and send him back. And I said, well, he is normal, there's nothing wrong in him. But anyway, I declared him on his request, a mental or emotional liability in emotions. And I sent him back, and this soldier said, look, doctor, you are not doing good. I wanted to be a shaheed. So that was the spirit at the time. In 1965, the war between India and Pakistan, which was unjust war, thrust on us. But anyway, that was my reason that I became interested in psychiatry, which helped me after coming to here. So then after I left army very early because I knew that I was not doing anything professionally. Army people are healthy. I was not doing any medicine, we were just sitting and eating and drinking, coffees all the time. And I said, look, I have been graduated recently and I don't want to forget everything. I want to have more training in medicine. घर वालों की ऐश की खातिर जान पे भी हम खेले हैं, बर्फानी रातों में हमने अक्सर पापड़ बेले हैं, गोरों की नफरत के सदमे खामोशी से झेले हैं, यूरोप के कचरों से फिर भी सच्चे मोती रोले हैं, मेहनत से फल फूल उगाकर सदा खुशी से रहिएगा, दुख भी मिले तो सहिएगा और सुख भी मिले तो सहिएगा. And I came to UK via Saudi Arabia in late 1968. There was 30 applicants for one job. So I was lucky to get the job on my first application, and the story I told of that soldier, they impressed him and the consultant and the panel. And they said, well, we'll try to teach you on this line more. So I went into, it was a psychiatric job. It was not the job which I was going to follow, but I wanted some training in it. And then it dawned to me that this is a very good place that you can work, you can earn, and you can study. Now this is a unique facility which you don't get anywhere else. And there is a training. So then I continued there, one job after the other job. Finally, I came to Glasgow. And the reason was
Then now I had married and my family had joined me, and I wanted some place where I can settle, and if I have children, we have an education. I looked in various parts of UK, and one or two friends were here, but I liked Glasgow because it has all the educational facilities just within the 1 mile radius. Actually यहाँ जीपी बनने नहीं देते थे बाहर के लोगों को, यहाँ बड़ा क्लोज शॉप थी बीएमए की, और जिस भी जीपी के पास जो के लोकल थे हम जाते थे, वो हमें एक बिल्कुल ही माइनर जॉब देते थे, वेल अंडरपेड, ज़्यादा ड्यूटियाँ करानी, और फिर यह है कि वो जीपी बनने नहीं देते थे, ऐसे उसको हम कह रहे थे सैलरीड पार्टनर, एक किस्म का मुलाजिम रख लेते थे। मैं जब उनके पास गया तो मुझे भी उन्होंने ये ऑफ़र की, मैंने कहा नहीं मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो वो मुझे देते नहीं थे वो एक जॉब के लिए। फिर मैंने कहा मैं अपनी अलग दुकान खोलता हूँ, तो पॉलिकशील्ड में मैंने एक जगह दे के एप्लीकेशन दे दी कि मैं यहाँ अपनी सर्जरी खोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस वक्त जो बीएमए के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तो मरीज़ कोई नहीं। मैंने कहा दुकान खोलूँगा तो आ ही जाएंगे मरीज़। कहने लगा हम तो तुम्हें जब तक 1000 मरीज़ नहीं होंगे तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है तुम फ्री सर्विस दे रहे होगे, और इसका मतलब ये है कि तुम कहाँ से जियोगे, कहाँ से खाओगे, कहाँ से उस मकान का मॉर्गेज वगैरह दोगे। तो मैंने कहा ये कोई मसला नहीं है, मैं अपने आप करूँगा इसके लिए जो कुछ है, मेरे पास कुछ पसंदाज है इसलिए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे जीपी बनने दें, हालांकि मैं फुली ट्रेंड था हर किस्म का। तो मैंने अपील की, वो उन्हीं के दूसरे लोगों की कमेटी में चली गई, उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दी। इसके बाद मुझे फाइनल अपील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास मिली। मैंने उनको कहा कि मैं इसको लड़ूंगा यूरोपियन कमेटी तक। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता है कि जब एक पाकिस्तानी जिद करे तो वो पूरी करके रहता है। ये मैंने वर्चुअली कहा पूरी कमेटी को। तो मुझे किसी ने बताया यहाँ कैनन ऑर्टन एक वकील होता था जो कि ह्यूमन राइट्स का वकील था। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा अच्छा जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ तुम लिख के मेरे पास ले आओ। तो मैंने एक लेटर लिखा हुआ था ऑलरेडी ब्रूस मिलन के नाम, उसमें सब कुछ लिख के दिखा था। मैंने उसको दिया, पढ़ाया, तो वो कहने लगा कि मुझे इसमें कुछ नहीं चेंज करना, ये लेटर कहीं जाके लड़ेगा, इसका जवाब मिलेगा पॉजिटिव, तुम यही भेज दो। तो जब ब्रूस मिलन के पास वो लेटर पढ़ा, उसने एकदम से सारे फैसले सस्पेंड करके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मुकर्रर कर दी। इसका मतलब ही अपहोल्ड माई अपील। ग्लासगो की मेडिकल हायरार्की में हलचल मच गई कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ डिसाइडेड अगेंस्ट हिमसेल्फ, क्योंकि वो तो उसी के बिहाफ पे काम कर रहे थे ना। तो वो जनाब फिर उनको वो मेरे पीछे पीछे फिरने लगे, हम आपको जॉब दे देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो मैंने उसको कहा कि जॉब तो आपको देना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन मेरी मर्ज़ी का होगा। फिर उस कमेटी के अंदर एक मेरा दोस्त बन गया था डॉक्टर रिडल, उसने मुझे कहा कि मैम तुम ये जॉब निकल रहा है, ये मेरा प्रेजेंट जॉब है वेस्ट एंड में, इस पर अप्लाई करो। वो एक गोरे के डॉक्टर ओगलवी की प्रैक्टिस थी, बर्कले ओगलवी की, वो एक रिटायर हो रहा था उसकी प्रैक्टिस। मैंने उसको अप्लाई किया, हालांकि उसमें बहुत सारे दूसरे एप्लीकेंट थे। उन्होंने वो मुझे फिक्स कर दिया उस जॉब में, वो मुझे जॉब दे दिया। इसका मतलब जब वो जॉब देना चाहते थे दे देते थे, जब नहीं देना चाहते थे तो वो रिजेक्ट कर देते थे। वो मुझे वहाँ पर फिक्स कर दिया। अब सारी बीएमए मेरे पास आ गई कि जब आप हमारे हैं आप अब अपनी अपील विड्रॉ करें। नहीं, मैंने कहा मुझे सब कुछ सेट करो। फिर उसने मेरी सारी जो है ना सीरियरिटी मेंटेन की, और फिर मैंने वो अपनी अपील वहाँ से विड्रॉ की। तो ये केस था हिस्टोरिकल केस। आई वॉज द फर्स्ट जीपी ऑन माई ओन राइट्स, और मैं लड़के लिया है और अपने मैरिज पे लिया है। और फिर अर्ज किया कि गम और खुशी के लम्हे हमने खामोशी से झेले हैं, खून हुआ जज्बात का फिर भी अपने होंठ ही काटे हैं। गुर्बत ने जो जख्म दिए वो अपनी जुबान से चाटे हैं, कांटों भरी राहों में हमने फूल ही अक्सर बांटे हैं। प्यार से सबका मान बढ़ाकर सदा प्यार से रहिएगा, दुख भी मिले तो सहिएगा और सुख भी मिले तो सहिएगा। But the question is this, then there was problem here. When I came in the city, I came in Glasgow in 1972. And there came the function of Pakistan Day in August. And then we started participating in various functions. The first ever function which my late friend Qazi Asghar Ali Marhoom, he did was a mushaira where Hafiz Jalandhari came. So that was really very great thing for us to have the mushaira. We made this Pakistan Art and Literature Circle Glasgow. The idea was to gather all those who can participate in poetry or in literature. And what we used to do was we just once a week first in my surgery,
we used to gather, and somebody used to say some poem, somebody used to bring a good article from any magazine, and somebody used to tell jokes, and somebody used to tell some problem. So we used to share that because we had nothing else really to get together on one point. तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ कि फिर हम जल्दी ही हमें पता लगने लगा कि यहाँ पर जो पोइट आते थे ना पाकिस्तान या इंडिया से, फिर हम उनको मिलके उनके मुशायरे करने लगे। और ये मैं मशवरा दूंगा दूसरे लोगों को भी, वो अपने बच्चों को ये फंक्शनों में हिस्सा लें, क्योंकि एक तो ये है कि उससे ये बड़ा फ़ायदा होता है कि ये तमाम के तमाम जो है ना अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, उनका एक झिझक ख़त्म हो जाती है। दूसरे ये होता है कि उनको अपने उससे कल्चर से टच रहती है। तो तीसरी चीज़ ये है कि अब हमने जो मुशायरे वगैरह किए हैं उसका थीम ये होता था, एक तो अपनी ज़िंदगी यहाँ की और दूसरे पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके मुतालिक। और मलका की इस नगरी में भी फूल हैं तो कुछ खार भी हैं, दिल के तोड़ने वाले भी हैं, गोरे कुछ गमखार भी हैं, जाहिल भी हैं काहिल भी हैं, यहाँ कुछ नाहंजार भी हैं, नफ़रत करने वाले भी हैं, प्यार से दिल सरशार भी हैं। दिल कुछ गमगी हो तो कौसर फिर भी खुशी रहिएगा, दुख भी मिले तो सहिएगा और सुख भी मिले तो सहिएगा। फिर इसके बाद हमें ये था कि हमारे जो था ना मज़हब लोग हमारे बना रहे थे, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। माशाल्लाह मैं 1985 से बड़ी मास जो है उसका जनरल सेक्रेटरी चला रहा हूँ, 2-3 बार वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और हमारा कंट्रीब्यूशन ये था कि हम इसमें जो इंटेलेक्चुअल आउटपुट जो होता है वो हम इसको देते रहें और लोगों को इकट्ठा करते रहें। फिर ये था कि स्कूलों के अंदर मसला था कि भाई स्कूलों में और हॉस्पिटल में हलाल फूड नहीं मिलती थी, इसके लिए हमने मिल के सब ने, उसमें बशीर मान भी शामिल था, सरवर भी था, मैं भी था, वो किया। तो अब माशाल्लाह हमें स्कूलों में और हॉस्पिटल में हलाल फूड भी मिलती है। और इसके बाद हमने एक और जो काम शुरू किया वो ये था कि हमारे बूढ़े जो होते जा रहे थे फर्स्ट जनरेशन, उनके लिए कोई बैठने की जगह नहीं थी। तो वो डे सेंटर जो होते हैं ना ओल्ड पीपल के, हमारे लोग उनमें गोरों के साथ बैठते नहीं थे क्योंकि वो शराब पीते रहते थे, गालियाँ देते रहते थे, सुअर खाते थे। तो वो ये कहते थे पता नहीं हमें भी यही कुछ खिला देते हैं, तो वो जाते नहीं थे, इसलिए घरों में बैठे रहते थे। हमने बड़ी मस्जिद के प्लेटफॉर्म पे 2-3 और दोस्तों के, उसमें अपने एक अबूजर सईद चौधरी साहब होते थे वो बांग्लादेशी लेकिन प्रो पाकिस्तानी थे, उनका बड़ा रोल था, बड़े अच्छे मुसलमान, अभी भी माशाल्लाह जिंदा हैं। उन्होंने काम किया, हमने किया, डॉक्टर अकरम थे और कुछ दोस्तों ने मिलके ये हमने काम किया। तो हमें मस्जिद में एल्डरली डेज के सेंटर बनाने की इजाज़त मिल गई, जो कि यूनिक था, पहला सेंटर था जिसमें कि हमने मुसलमानों के लिए एक अपनी जगह बना दी मस्जिद में, जो कि मिक्स नहीं था। इसमें हमारी भी मुखालफत हुई। इसके अलावा फिर मैं पार्क वार्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था जो वेस्ट एंड पे थी। वहाँ पर हमने एक तो इंफॉर्मेशन सेंटर खोला, जो भी किसी को प्रॉब्लम होते थे वो हमारी फ्री सर्विस देते थे। फिर हमने उसी के प्लेटफॉर्म पे एक डे सेंटर बनवाया एशियंस के लिए, जो कि एशले स्ट्रीट में अब है। फिर उन्होंने, वो पहला था एशियन डे सेंटर, क्योंकि मैंने उनको बताया देखिए हमारे जो लोग हैं बूढ़े हैं, वो ये इसमें अगर वेस्टर्न रोड पे जाए ना, ग्रेट वेस्टर्न रोड पर, वुडलैंड रोड पे, वो दरख्तों के नीचे बैठे होते, बारिश हो जाती थी, बूढ़े थे, काँप रहे हैं। हमने कहा उनके लिए वो सेंटर बनाओ। तो बड़ी तकदों के बाद वो सेंटर बनाए, माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, उसमें मैं पिवोटल मेरा रोल था। लेकिन मैंने कोई क्लेम नहीं किया, हमने लोगों के लिए जगह बनाई, मेरे कोई पैसे नहीं लगे, हमारा वक्त लगा, हमने एक चीज़ को महसूस किया, उनके लिए कराया, वो बन गई, अभी भी चल रहा है, वो ऐसे स्ट्रीट में पक्का है। किसी को पता भी नहीं वो उसमें मेरा कितना रोल था बाहर, लेकिन लोगों के लिए वो एक अच्छी जगह, मुझे इसी पर खुशी होती है। इसी तरह से जो हमारे जो लोग थे ना, उनको जो प्रॉब्लम होते हैं वो है हेल्थ के प्रॉब्लम, उनके लिए हमने बड़े काम किए हैं। कि एक तो मैं जीपी था इसलिए, और मेरी जनरल प्रैक्टिस का रोल ये था कि मेरी प्रैक्टिस ओपन है, आई डोंट हैव अपॉइंटमेंट सिस्टम। और मेरे जो मरीज़ नहीं होते तो उनको भी मैं डील कर लेता था, उनको भी, उनकी भी हेल्प करता था। मेरी प्रैक्टिस में एक इटालियन आया जो कि मेरा मरीज़ नहीं था, अबाउट 12:30 के करीब टाइम था, सर्जरी ख़त्म हो चुकी थी। उसने ऐसे ही सेक्रेटरी से कहा कि मुझे ज़रा डॉक्टर से मिलवा दो किसी तरह से। उन्होंने कहा अब तो यहाँ के मरीज़ भी नहीं है और अब तो प्रैक्टिस खत्म है। उसने कहा एक बार मुझे बात करा दो। मुझे सेक्रेटरी ने पूछा, मैंने कहा उसे भेज दो। तो आया, उसने मुझे बताया कि मुझे चेस्ट में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है, वीकेंड पे थी, तो मैं हाईलैंड में एक हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने ECG करके कहा बिल्कुल ठीक है तुम चले जाओ। तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे बताओ क्या। मैंने उससे 2-4 क्वेश्चन किए और मेरे जेहन में आया कि इसको आई थिंक इज हैविंग इम्पेंडिंग हार्ट अटैक। मैंने उसको कहा देखो तुम, अभी मैं तुम्हें लेटर देता हूँ, तुम अभी अस्पताल जाओ, और वहाँ पर इसी तरह खुशबाश नहीं जाना। मैंने उसको कहा कि तुम्हें थोड़ा सा एक्टिंग करनी पड़ेगी एज इफ यू रियली हैव ए प्रॉब्लम।
तो वो हंसने लगा। मैंने कहा नहीं ये कर देना, क्योंकि नेशनल हेल्थ में 75 मिलियन जो लोगों को ट्रीट करती है, तो जाहिर है कि जब तक आदमी सही बीमार ना लगे वो जल्दी से वो नहीं करेंगे। मैंने उसको समझा दिया, वो गया और वाकई उसने ऐसा किया। तो उन्होंने उसको किया, उसके टेस्ट किए तो उसको हार्ट अटैक हो रहा था। उन्होंने एकदम उसको जुबली हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया और उसका मतलब है कि वो हुआ एंजियोप्लास्टी हुई इसकी, और वो आया। और बाद में उसने जो भी कुछ कहा वो रिमार्केबल है। उसने मुझे कार्ड दिया, उस पर लिखा था कि बाई चांस वंस आई वॉकड इनटू द सर्जरी ऑफ ए प्रिंस अमंग्स डॉक्टर्स। अपने वतन में गंद फैलाकर यहाँ आते हैं कुछ सियासी लोग, कुच्ची दाढ़ी अचकन टोपी टिंड वाले सन्यासी लोग, उल्टी सीधी बातें करके जीते हैं ये बासी लोग, पीतल को सोना बतलाएं अंदर से ये कांसी लोग। बातें इनकी सुन लीजिएगा, मुंह से कुछ ना कहिएगा, दुख भी मिले तो सहिएगा और सुख भी मिले तो सहिएगा। और फिर अर्ज किया कि वक्त मिले तो कभी कभी उस देश को भी तुम याद करो, जिसने बख्शा तुम्हें हवाला उसका भी दिल शाद करो। अपनी गलियां अपने कूचे जाओ और आबाद करो, पैसा कमाने आए हो पर इज्जत मत बर्बाद करो। जंगल में जो मोर है नाचे, नाच ना उसको कहिएगा, दुख भी मिले तो सहिएगा और सुख भी मिले तो सहिएगा। फूलों के इस देश में कौसर फूल ही बनकर रहिएगा।